बहुत सारे मेडिसिन ऐसे भी हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे भी हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। तो अगर हमको नहीं पता होगा कि इसके एब्रिविएशंस क्या है, इसका नाम क्या है, कौन सी मेडिकेशंस हैं, तो हम ये आगे यूज में भी नहीं ला सकते और हम इसके लिए थोड़ा सा अननोन रहेंगे। तो एब्रिविएशन इसलिए जरूरी है कि आप उसको गो थ्रू करें। नेक्स्ट, क्राउड इन नक्स vomica, erections during, that is tarantula, fall tendency to looking down on spigelia, rising from bad rust tops, fullness and aching in vertex simsifuga, gaslight from causticum, inspiration deep on cactus, looking with eyes turned spigelia, mirror after looking into कालिका। तो वर्टिगो के अंदर हम ये सारे रूब्रिक्स देख रहे हैं जहां पे सिंगल रेमेडीज है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंगल रेमेडीज की बात कर रहे हैं। Then starting से मैसेज। So we have to start from first point or further? So sorry, there are some technical issues. We are moving forwardly with some single remedies from other chapters. First is vertigo. So in vertigo, as I already told you that back comes up to Alicia, colored glass, light shining, throw from. So just go through slides only. So here, जहाँ पे मैंने अभी तक कराया, उसके आगे का जो है उसको आप देखते जाएं। साथ में मैंने कल भी बोला था कि आपकी जो भी बुक है दैट इज कैन ट्रिपर्टी, ओनली कैन ट्रिपर्टी, एज वी फर्दर डिस्कस ओवर द कैन ट्रिपर्टी। तो आप उसके साथ साथ अपने रूब्रिक्स और रूब्रिक्स में जो हम सिंगल मेडिसिन की बात करते जा रहे हैं, या तो उससे नोट डाउन करें या फिर टिक करते जाएं, जिससे कि आपको ये याद रहे। Gaslight from causticum, inspiration deep on cactus, looking with eyes turned spigelia, mirror after looking into calica, noise from pteridon, rubbing the eyes amelioration alumina, saving after carboanimalis, stars white before the eyes alumina, stomach proceeding from calica. Urination during aconite, copious amelioration, gelsemium, urging when hypericum. तो वर्टिगो के चैप्टर में हमने 16 रूब्रिक्स देखे, जिसके अंदर actually में they are not rubrics, they are sub rubrics. Main rubric is vertigo. So we can say somewhere that is chapter vertigo, but in other stalwarts language that is the main rubric, and then they are the sub rubrics like during, copious amelioration, urging when, and urination is a marked rubric. So total 16. तो टोटल जितने भी हमने अभी तक देखे हैं वो 16 सब रूब्रिक्स हैं, जिसके अंदर हमने जो रेमेडीज देखी हैं वो है सिंगल रेमेडी। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें, जब भी आपको लगता है कि हाँ हमारा फ्री टाइम है, अपने नोट्स से होम्यो अकेडमी में आपके जितने भी नोट्स हैं उसको फॉलो करें, उसके थ्रू आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, हेड। इन हेड, कन्वर्जेंस ऑफ राइट साइड ऑफ हेड, माइग्रेन, dandruff yellow, caliceal, elongated sensation hypericum,
foreign body in right side of brain, that is corneum, hair falling, pregnancy during, that is lachesis, menopause sepia, marble brain feast as if cased into cannabis indica, edema, glabella, calica, opening and shutting sensation as if open and let in cold air, simsifuga, tension drawing upward of skin of forehead, that is carbo animalis. तो यहाँ पे जितने हैं हमने सेक्शन के अंदर जो भी रूब्रिक्स देखे हैं, यहाँ पे टोटल हमने जो सिंगल रेमेडी देखी है वो 9 अभी तक हमने देखी है। तो इनको भी थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए आपको गो थ्रू होना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेली रूटीन। नेक्स्ट इज आई। इन आई फर्स्ट astigmatism, that is tuberculinum, cancer lacrimal gland, that is carbo animalis, cataract cortical sulfur, food sweat suppressed after, that is salacea, can see better on a dark day, that is euphrasia, degenerate cornea arsenic, fistula of cornea salacea, thin sensation as of a verb falling over the eyes, that is again cornea, loose sensation as if, that is carbo animalis, melanosis aurum, moonlight aberration eye symptom aurum, photophobia straining the eyes after argentum nitrica. So one thing again, जो मैंने कल भी आपको बताया कि मीनिंग, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमें जो भी चीज हम यहाँ देख रहे हैं, जो भी रूब्रिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी सब रूब्रिक्स हम यहाँ देख रहे हैं, उनका मीनिंग, उनके सिनोनिम्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कई बार हम एक ही चीज को अगर हम माइंड सेक्शन में क्योंकि 4th ईयर आप पास आउट कर चुके हैं तो आप रिपर्टरी को गो थ्रू अच्छे से कर चुके हैं, तो रिपर्टरी में हम जब माइंड सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे कई वर्ड ऐसे आएंगे जैसे कि एब्रप्ट है और उसी का हम क्रॉस रेफरेंस में देखते हैं तो 4 सेकंड भी है। तो अगर हमें ये पता है कि इसका ये मतलब है, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट आया और उसने अगर ऐसे हमें नरेट किया है तो हम इन दोनों को कहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्रॉस रेफरेंस में भी दिया गया है। तो दोनों का मतलब एक है, पर यूज कैसे करना है तो उसके लिए उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। यहाँ पे भी अभी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, तो आप एक बार उनके सारे मीनिंग साथ में देखते चले जाएं जब भी आप आगे अपना स्टडी करते हैं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ट्यूमर्स, वेन्स, ग्राफाइटिस, ulceration, meibomian glands, colchicum, week after question, calica, vision. So 13 single remedy. Now vision. In vision, first is approach, object seen to approach and then receive, cicuta. Crooked objects appear, belladonna. Hypermetropia, overuse of eyes in fine work, that is argentum nitricum. Loss of vision alternates with headache, that is calibi. Loss of vision conversions before, that is cuprum. Moonlight aberration aurum. Rain seeps looking through natrum mu. Now one thing, that is moonlight amelioration. रिपर्टरी में रूब्रिक्स का यही एक क्वालिटी है कि अगर आपको अच्छे सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे वो आपके मोडालिटीज में हो, चाहे वो आपके चीफ कंप्लेंट में कैरेक्टरिस्टिक हो, उनको यूज कैसे करना। एक सेंटेंस में अगर पेशेंट ने बोला कि बहुत सैड फील करता हूँ बट जैसे ही मैं ओपन जगह पे जाता हूँ या फिर मेरे रूम से भी मून की लाइट मेरे ऊपर पड़ती है या मेरे जो थॉट्स चल रहे होते हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है, या मैं कैसे भी माहौल में रहूं हल्की सी भी मून लाइट मेरे फेस पे पड़ती है या फिर मैं छत पे जाऊं तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे एमल्यूरेशन, मून लाइट एमल्यूरेशन भी ले सकते हैं, बट लेना कैसे, कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कैन रिपर्टी यूज करें तो आपको पता चलेगा कि हमें किस चैप्टर के किस सेक्शन के अंदर जाएंगे जहाँ पे मेडिसिन मिलेगी। और अगर हमें पता है मूनलाइट एमल्यूरेशन ऑरम ही सिंगल मेडिसिन है, तब तो आपको और इजी है क्योंकि आप पहले उससे गो थ्रू हो चुके होंगे। नेक्स्ट इज ईयर। फर्स्ट, एडिसन इन मिडिल ईयर, दैट इज आयोडम. Breath sensation as it came from ear, that is sorinum.
carries petrous portion of temporal bone, that is capsicum, distension on blowing nose, pulsatilla, fungus, excretions, murk, lupus on the lobe, nitric acid, noises, gurgling in the ears as if air bubbles, that is lycopodium. Opening sensation of through which the air penetrates on opening and closing the mouth, that is thoja. Rolling as if something to and fro in air on shaking the head, that is rota. यहाँ पे जब हमने ओपनिंग, रोलिंग और ऐसे कई रूब्रिक्स आए होंगे कि जहां हम पढ़ भी रहे हैं और हमें लगता भी है अच्छा ऐसा सिम्टम है, ये तो हमें पेशेंट ने भी कई बार बताया, तो हमने प्रैक्टिकली भी देखा अच्छा इसके अंदर ये भी मेडिसिन है। अभी आप जब इस मेडिसिन को अपने एमएम या फिर अपने रिपर्टरी में भी एज अ रेफरेंस यूज करोगे तो देयर नंबर ऑफ लॉट्स मेडिसिन जो कि इसके रेफरेंस में भी होंगी, जो इसके कंपैरेटिव में होंगी, तो आपको एक ग्रुप स्टडी करने में भी आगे मजा आएगा। और इस तरीके से आप जब ग्रुप स्टडी करते हो तो आपको लंबे समय तक के लिए याद भी रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यू के पर्पस से कई बार यूज होते हैं। Talks on swelling, that is conium, tumor, cystic nitric acid, lobe under calcarea. When on lobe, this is the important question for exam purpose. Hearing, illusion as if tone came from another world. Carbo animalis. तो अगर हम हियरिंग की बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था वो जब हम चैप्टर्स और सेक्शन की बात कर रहे थे कि कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है, कौन से रूब्रिक सबसे कम है, किसमें ज्यादा है। तो अभी आप फिर से कोरिलेट कर लेना कि हियरिंग में क्या था, शायद सभी को याद होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है इसलिए याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज नोज। Blow compared to sensation of a large body in nose, that is diaphragm. Double feels as if she had two noses, Mercurialis. Enlarging sensation, cannabis sativa. Epistaxis, hot weather, crocus. Novi tip, that is aura. Necrosis, that is phosphorus. Face. Adhesion of skin to forehead, that is sabina. Chewing motion of jaw. Epilepsy before an attack of calcaria. Cobwebs tension as from Barytica. Enlarged parotid gland left, that is ruta. Exostosis, right cheek bone, aurum neuraticum. That is the again important question according to MCQs. And next one is also very important, that is involuntary mouth opens, theridion. Long sensation as if elongated. Stramonium. Necrosis upper jaw, mug cough. Shaving aggravation complaint, Carbo animalis. Muddy antimtar. Separation of lower jaw, that is phosphorus. Tumor parotid gland dry, that is calcarea. Weakness of lower jaw after eating, that is Varieta calm. Now in mouth, corrugated tongue. So, हमने वेरियस टंग कई बार जैसे नेट्राम्यूर में है तो हमने मैप टंग पढ़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप। कई लोग प्रैक्टिस भी करते हैं कि किस तरह के टंग का क्या करेक्टर है, उसके बेस पे मेडिकेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। वैसे यहाँ पे टंग यूज हुई है कॉरोगेटेड टंग। तो अगर कॉरोगेटेड का मतलब ही नहीं पता है या आपने कभी देखा ही नहीं है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि कॉरोगेटेड क्या होता है। तो सबसे पहले फिर वही बात आई कि अगर हमें पता करना है कि भाई इसका ये मेडिसिन है और इसका मतलब ही नहीं पता है तो हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगेन इन corrugated tongue, Natramur and it's your task to understand corrugated tongue. तो जो भी इसके लिए देखेगा मुझे जरूर शेयर करेगा नेक्स्ट लेक्चर में। Elongated gum sensation of nitric acid. Food escapes from mouth during chewing, that is argentum nitricum. Enduration inside the cheek, causticum. Ringworm tongue, right side, that is natramur. It's very important question. Watery loop gums, apis. In this section, bite wants to on something hard which relieves pain, dentation. That is
Phytolacca, bites tumbler when drinking arsenic, drops syphilinum, as scale, sharp and hurt gums, aloe, pressing together, send a shock through head, ear and nose, ammonium calm. Well shaped, that is curiosity. Now in throat section, upper core had lost sensation as a fighter, pain, change of weather, calcaria, reverse peristalsis of esophagus, that is asafoetida, external throat, lump in throat pit, that is lobelia, stomach, air as a phosphosing throat, that is barataka, aversion garlic, sabadella. In aversion rubric, there are sub-rubric that is me thinking of it while the single remedy graphitis, aversion boiled mix that is phosphorus, aversion onions that is again sabadella, aversion bananas that is alapse. So in stomach chapter, desire and aversion, मोस्टली जितना भी डिजायर अवर्जन हम देखते हैं कैंट रिपर्टरी में तो हम स्टमक चैप्टर के अंदर ही देखते हैं और अगर सिंगल रेमेडी हमें पता है कि गार्लिक sabadella meat thinking of it while graphite it's very easy because कैंटनी फिजिकल जनरल्स में आप सभी को पता है इम्पोर्टेंस है वहां पे फिजिकल जनरल्स में डिजायर का स्लीप का सेक्स का और जितनी सारी चीजें हैं उनको उतना ही इम्पोर्टेंस दी है जितना उन्होंने मेंटल्स पे दिया है तो यहाँ फिजिकल हाईली इम्पोर्टेंस रखते हैं तो ये तो डेफिनेटली हमें मिलेंगे ही मिलेंगे तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे याद रखना चाहिए कि सिंगल रेमेडी में बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एवर्जन गार्लिक इनकैंट्रेपर्टी सिंगल मेडिसिन दैट इज sabadilla aversion meat thinking of it while that is graphitis aversion boiled meat that is phosphorus तो हमें ऐसे ये एटलीस्ट 4 to 5 जो भी दी गई है सिंगल रेमेडी इस पर्टिकुलर स्टमक डिजायर एंड अवर्जन में आपको लर्न होना ही चाहिए नेक्स्ट डिजायर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिफोर मेंसेस सेलेनियम bananas theridion honey sabadella pepper lectinine balanced up and down as if stomach were phosphoric acid disorder, fresh meat, causticum, epileptic aura rising from stomach to head, that is calcaria. Fermentation, fruits after China, hiccup, alcoholic drinks after, that is ranunculus bulbosus, horrible sensation, morning on, waking in drunkards, asaram. It's again important question in competitive different competitive examinations as well as in your clinical practice too. Jumping sensation of that is crocus sativus open as if stomach were sensation spongia. Lacking line sensation of causticum. Next in abdomen chapter abdomen rubric called connecting anus and navel sensation of with cutting when straightening up, when bent forward, pharum iodatum, cracks on surface of abdomen salicia, emaciation of muscles of abdomen that is plumbum mat, epilepsy begins in buforana, excrescence moist umbilicus, calcaria, horripilation that is sickle cord. Tumors, ponium, weakness, diarrhea as if would come on aloes, rectum, cauliflower, excrescence, thusa, chilliness in rectum before stool, lycopodium, constipation, coffee after muscles, home when away from lycopodium, menses instead of, that is graphitis. Cord extending from anus to navel, that is pharum iodatum. Here, one subrubric is very important under the chapter rectum, that is
menses instead of a single remedy graphitis. Diarrhea amelioration or ginkum, kata or coryza after sanguinarium. Exciting news from Gelsemium, ginger after nux vomica, melons from gingiber, oranges from phosphoric acid, riding amelioration nitric acid, wrapping up warmly amelioration salacia. Hemorrhoids in children, that is muriatic acid, milk aggravation, that is sepia, involuntary stool excitement from Alzheimer's, plug sensation of base between pubis and coccyx, that is allos. In stool, filaments of hair in feces, that is selenium. In stool, knotty, united by threads of mucus, that is again graphitis. Urinary organ in under chill spread from neck of the bladder after urinating, that is salsa Gangrene cantharis, jar sensitive to belladonna. Gas passes from sarsaparilla. Obstruction, sensation of neck, urinating while, that is sulfur. Swelling region of neck, pulsatilla. Urination, perpendicular, urine drops out, hyposol. Fever, stream, difficulty of breathing, and heart symptoms with, that is Tauruses. Kidneys, in kidneys only one rubric, numbness reason of Barbaris, single remedy. Prostate gland enlargement, dribbling urine after stool and urine, that is selenium. Festering sensation, cyclamen. Quivering nervous, that is again important for exam purpose. Rubric quivering nervous, formica rufa, single medicine under chapter, prostate gland. Urethra, ear passing through, female urethra, sensation of sarsaparilla, genitalia, absent sensation of as if panis were cocaine, phimosis, paraphimosis, extensive swelling of glands, Calliote, Sibyl spermatic part, that is capsicum, tied with cord, sensation as if panis, that is plumber, genitalia female, menses, excitement after calcarea, suppressed from grave, ignatia, suppressed from cold bath, that is aconite. Next, under genitalia female, metrorrhagia, that is rubric. In girls, little Sina, nursing the child when salacia, prolapses, uterus, urination during calcarea pause. So next, in larynx and trachea, that is preserved in larynx, single medicine, Wufo. Flapping sensation in larynx, single medicine, that is lachesis. Flesh hanging in larynx, sensation of, that is single medicine, phosphorus. Insensibility of larynx, calibi. Edema vocal cords, lachesis. Prickling in larynx, calcarea. So, up to larynx and trachea, as we started from mind and then others
systems or in other sections only single remedy as we going through the single remedy. So there are different sections as we covered up to larynx and trachea. So one thing what I want to tell you all, that if we don't know the meaning, not only for simple words, but only also for disease condition, there are lots of rubrics where you can go through in comparative study with different disease condition. For example, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा flesh hanging in larynx sensation of, अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकली ऐसा केस या ऐसा पेशेंट नहीं देखा है तो शायद थ्योरेटिकल आप लर्न कर लेंगे, बट अगर उसी चीज को हमें फील करना है या फिर समझना है, उसके लिए प्रैक्टिकली आप जब देखेंगे तभी समझ में आएगा. नेक्स्ट, इनसेंसिबिलिटी ऑफ लैरिंग्स. अगर इनसेंसिबिलिटी है, इनसेंसिबिलिटी मेंटल लेवल पे भी मिलता है, इनसेंसिबिलिटी आपको फिजिकल लेवल पे भी मिलेगा, बट हमें यहाँ कैसे कोरिलेट करना है वो मैटर करता है. अगर आपको रूब्रिक्स को कोरिलेट करना आता है विद डिजीज कंडीशन ऑन द फेज ऑफ मेंटल एज वेल एज फिजिकल, तभी आप रूब्रिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो जितने भी रूब्रिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जो भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, इसको कैसे यहाँ पे इसमें कैसे मेडिसिन आ गई या फिर इसको क्या हम कहते हैं. तो अभी क्योंकि टाइम का जो है बहुत शॉर्टेज है, आपके पास अभी 1 मंथ भी पूरा नहीं है, तो एक एक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. फर्दर हम कभी इसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर पर्टिकुलर ओनली दिस चैप्टर और फॉर पर्टिकुलर ओनली रूब्रिक्स डिस्कशन. बट यहाँ पे अभी मेन ये है कि आप जो भी लर्न कर रहे हैं एटलीस्ट उसका मीनिंग आप पता रखें, जिसपे बैक ऑफ माइंड में आप उस मीनिंग के थ्रू वो मेडिकेशन समझ सकते हैं, राइट. तो ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज है जो आप इसको जरूर से दिमाग में फिट कर लें कि हाँ इसको तो हमें समझना ही है, तभी आपको समझ में आएगा. इम्पोर्टेंट क्या है कैंटरपर्ट में, जो स्टार्टिंग से हमने देखा उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी एडिशन हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछूं कि फर्स्ट इंडियन एडिशन अगर मैं पूछती हूँ तो किस ईयर में आया. अगर मैं पूछूं 6th एडिशन, और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू पर्पस से इन कैंटरपर्टी, दैट इज फ्रॉम एडिसन, रिवाइज्ड एडिशन ऑफ कैन वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर. तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि किस ईयर में था. उसके लिए फिर अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी ईयर्स वाइज, जितने भी एडिशन ईयर वाइज आए हुए हैं, वो सारे आपको रोज गो थ्रू करना है, रोज रिवाइज करना है, तभी जाके आप इसे याद रख पाएंगे. क्योंकि रिपर्टरी में कॉन्सेप्ट यही है कि जितना एडिशन, जितने ईयर्स हैं, बहुत बोरिंग लगता है उनको पूरा मगअप कर पाना, बट इसका सिंपल फंडा यही है कि आप जितना ज्यादा उसको रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे राइट डाउन करें, जितना ज्यादा आपका फ्री टाइम हो, जब आपका मन ना करे कोई और अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने का, तब आप रिपर्टरी को ऐसे पढ़ सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा डिफरेंट है एडिशंस एंड ऑल, तो थोड़ा आपका माइंड वहाँ पे सेट हो गया. तो ये हल्की सी आज की टिप है आपके लिए, ये आप देख सकते हैं. Once again, in rubric, there are some chapters where alphabetically arrangements, जो हमने कल बात की, अल्फाबेटिकली जो अरेंजमेंट्स है वो सारे उसमें फॉलो नहीं हुआ है. बट हमें पता यही है कि जितना भी कैंटरपर्टी में हम पढ़ते हैं वो अल्फाबेटिकली ही अरेंजमेंट है. पर इन डिफरेंट चैप्टर्स, in different general rubrics, there are many misplaced alphabetical arrangement. Means जैसे हम misplaced rubrics पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए important है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे जनरल रूब्रिक्स में हमारे STME भी फॉलो नहीं हुआ है और बहुत सारे जगह पे आपके अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट भी आपको नहीं मिलेगा. तो कहीं आपको ये डाउट हो कि हमने तो ये पढ़ा था पर हमारे रिपोर्ट में तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के, कि कहीं पे हमें ये चीज फॉलो करते हैं, कहीं पे चीज हमें फॉलो नहीं होती है. दूसरा इसमें है कि जैसे
हम स्किन से लेके अगर माइंड तक की बात करते हैं इन कैंट रेपर्टरी, तो स्टार्ट हुआ है आपका एडहेरेंट से। तो अगेन हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली गए, एडहेरेंट टू रिंकल्ड, ए टू डब्ल्यू। तो फिर से वो यहाँ पैटर्न फॉलो हुआ सेम माइंड में, अबंडेंट टू रॉन्ग। अबंडेंट जो है इसका फर्स्ट रूब्रिक है। अगर आप अपनी रेपर्टरी ओपन किए होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है आपका mind section. In mind section, first rubric is abundant, and then last one is wrong. तो ये यहाँ पे शो होता है इनकैंट रेपर्टरी के स्टार्टिंग से हम इसे मेंटेन कर रहे हैं अल्फाबेटिकली, बट इन सम चैप्टर्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे हमें ये अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट कहीं कहीं पे मिस होगा। तो यही इसका एडवांटेज भी है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट इसमें अगर हम पेन की बात करेंगे जो कि हमारा जनरल रूब्रिक है, और अगर हम चैप्टर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो वहां पे सबसे अच्छे से फॉलो क्या हुआ है इन अ जनरल वे में, दैट इज STME। STME जो हमने कल भी डिस्कस किया था हल्का सा कि STME मतलब क्या है और STME होता क्या है। तो STME में हमने जो भी उसका पैटर्न है वो पूरी तरीके से, तो अगर आप पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज का चैप्टर खोलें और जनरल रूब्रिक में भी जाते हैं पेन में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन उसके साथ जो भी उसका STME है वो फॉलो करेगा। साथ में आपको क्रॉस रेफरेंसेस, अगेन एमसीक्यू के पॉइंट से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉस रेफरेंसेस में भी टाइप है हमारे, दो टाइप का होता है और एक कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि अगर हमने एमसीक्यूज में देखा तो वहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्रॉस रेफरेंस, और 4 एमसीक्यूज दिए गए, उसमें कंफर्मेटिव भी है, कंपैरेटिव भी है, एडिशन भी है, सबसेक्शन भी है, और आपको अभी कंफर्मेटिव भी पता है और कंपैरेटिव भी पता है, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस। तो अगर बोथ ऑफ द अबव है तो हमें पता है ये है। अगर हमें यही नहीं पता है कि भाई क्रॉस रेफरेंस भी होता है और उसके टाइप भी होते हैं, तो टाइप में कंफर्मेटिव एंड कंपैरेटिव होता है, जो कि कैंट रेपर्टरी में भी फॉलो हुआ है, और सबसे अच्छे से अगर फॉलो हुआ है तो वो है BBCR। ठीक है, तो BBCR में आप जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उसका अरेंजमेंट जो है वो हमारे मॉडर्न रेपर्टरी में आ गया। मॉडर्न रेपर्टरी में जैसे कंप्लीट रेपर्टरी है, सिंथेटिक रेपर्टरी है, वैसे ही हमारे BBCR में जितने भी डिजीज कंडीशन है, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से इसमें कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। तो BBCR हमारे जितने भी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि BTPP इसका सोर्स है, तो BTP के सोर्स के हिसाब से यहाँ पे पैथोलॉजी कंडीशन को ज्यादा फोकस किया गया, और कैंट जो कि हमें पता है डिडक्टिव लॉजिक पे वर्क किया है, जनरल टू पर्टिकुलर, तो यहाँ पे उन्होंने मेंटल से लेके, बिकॉज उनका मानना है कि मैन एज अ होल और जो उसका सोल है, और जब सोल में कोई रीअरेंजमेंट होता है तो वो आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करता है थ्रू फिजिकल सिम्टम एज वेल एज मेंटल सिम्टम्स। तो दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्रॉस रेफरेंस की भी बात कर ली, और हमने यहाँ पे बात जो नहीं की है वो है कॉन्कोमिटेंट्स। तो आपको कॉन्कोमिटेंट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे इन इंडिविजुअल चैप्टर्स। अगर कैंट रेपर्टरी है तो आज आप क्रॉस रेफरेंस, कई बार जैसे एब्रप्ट है और हमारा क्रॉस रेफरेंस में देखिए तो फॉर सेकंड भी है, तो हम उसमें ये देखिए कि हाँ अगर ये है तो इसका ये क्रॉस रेफरेंस है। तो क्रॉस रेफरेंसेस से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी रूब्रिक देख रहे हैं तो उसका क्रॉस रेफरेंस अगर है तो उसे जरूर चेक करें कि उसके अंदर जो भी क्रॉस रेफरेंसेस है उसका मीनिंग क्या है और उसमें कौन सी डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, राइट ना। तो मैंने आपको बोला कि जो अभी लेटेस्ट एडिशंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है फर्स्ट रिवाइज एडिशन ऑफ कैन was published in 1974, जिसको हम 7th एडिशन से जानते हैं, जो कि पायरे स्मिथ ने इंडियन एंड अमेरिकन एडिशन दोनों को रिवाइज करके उन्होंने इसको देखा और इसे रेडी किया, और जब रेडी हुआ तो ये पब्लिकेशन जाने से पहले स्टोलन हो गया। यहाँ पे हमारे डॉक्टर दीवान हरिशन, जो आपने हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा,
बट मैं फिर से इसे रिवाइज करा रही हूँ कि ये आपको याद रहे कि 1974 को ही हम रिवाइज एडिशन ऑफ कैंट बोलते हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1974 में। इतना सफिशिएंट है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेडनबर्ग। स्वेडनबर्ग का क्या क्वेश्चन है? स्वेडनबर्ग का ये क्वेश्चन है कि इन्होंने फिलोसफिकल आइडियाज दिया कैंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिगार्डिंग सोल, इनर मैन एंड harmony of that particular person, personality. Swedenborg ने का वर्क जो है बहुत enlarged है on the soul, mental level and other harmony and different personalities of individual. जो भी philosophical ideas थे उनके, उन्होंने ही influence किया था मास्टर कैंट को to form concept regarding soul, inner man and personality ऑफ इंडिविजुअल। तो जहाँ पे हम कैंट प्रॉपर्टी में पढ़ते तो हैं कि हाँ उन्होंने मेंटल को फोकस किया है, उन्होंने माइंड में ये बोला है, उन्होंने कहा है कि इनर सोल अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारा ये होता है, तो हमें ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। पर बेसिकली आइडिया कहाँ से आया उनको? बेसिकली ही गेट फिलोसफिकल आइडियाज बाय स्वेडनबर्ग, मास्टर स्वेडनबर्ग। बाकी जब आपको देखना है तो आगे आप देख सकते हैं। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो मैंने कल आपको मेडिसिन बताई थी इन कैटेगरी, दैट इज 648, सभी को पता है। बट एज पर इंडेक्स देयर आर 6 ड्रग सिनोनिम्स इन द लिस्ट। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखें कि अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो देयर आर टोटल 6 ड्रग जो कि सिनोनिम्स हैं, और जो हमारे इंडेक्स में है वो तो 648 है, पर जो सिनोनिम्स है उसमें हिपेजिनम है, बहुत सारी है 6 जो आपने पहले भी पढ़ी हो, बस इनको रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको कोई क्वेरी है तो वो आप अपने क्वेरी बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे इतने बताने में भी आपको अगर कोई क्वेरीज हैं या फिर आप कुछ और एडवांस या फिर कुछ और इसमें ऐड ऑन चाहते हैं तो अपने क्वेरी सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं डिटेल में केवल इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ, बस इसलिए आइडिया दे रही हूँ कि आपके बैक ऑफ माइंड में रहे, जब भी आप रिपर्टरी के पेजेस पलटें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये भी बताया था मैम ने, तो एक बार इसको देख लें, बिकॉज मैं जो भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे 6 मेडिसिन हैं उनको एक बार देखिए कि वो 6 ड्रग सिनोनिम्स कौन से हैं जो कि हमारे लिस्ट में है। तो अगर ऐसे हम पढ़ते हैं तो 642 मेडिसिन है, तो कई बार हम जब आंसर करते हैं और हम देखते भी हैं तो उसमें 648 नहीं होता है, 642, 644, 645, 646। तो हम सोचते हैं ये तो गलत क्वेश्चन है क्योंकि 648 तो इसमें है ही नहीं। बट हम क्वेश्चन को अगर सही से रीड करते हैं, और अगर सही से रीड करने पे भी केवल ये पूछा गया है कि इन कैन प्रॉपर्टी, तो कई लोगों का ये मानना है कि 642 बिकॉज 6 ड्रग्स आर सिनोनिम्स। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो ये भी दोनों चीज अपने दिमाग में रखें। नाउ हमें ये तो पता है, जो हमने कल बात किया था उसमें हमें ये पता था कि गिब्सन मिलर जो है उन्होंने कुछ तो आइडिया दिया है। अब क्या आइडिया दिया है वो आपको पता है कि जो हमारे वार्निंग मोशन में चैप्टर दिया गया है लास्ट वन, उसी के रिगार्डिंग एक चीज 6th एडिशन में है, दैट इज last sides of body and relationship of remedies। ये किसने दिया है? गिब्सन मिलर का तो हमको सबको आइडिया है कि दिया है और काफी टाइम से सभी पढ़ रहे हैं। पर लास्ट साइड्स ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज ये दिया है डॉक्टर बॉन एंड मिलर्स। इसीलिए डॉक्टर बॉन एंड मिलर्स वर्क में ये चीज आती है इन 6th एडिशन। प्लीज नोट इट डाउन, इन